पुराने लोग जब उसमें थे उन लोग साड़ी पहनते थे, साड़ी मट्टी का जगह था, तो यहाँ पे लड़की लोग, यहाँ पे लड़की लोग। There was a time when sex work in Goa had a known address. Areas like Baina were mapped, visible, and quietly accepted. Before its demolition in 2004, estimates suggest that over thousands of women worked there, making it one of the largest red light zones outside metropolitan cities. Visibility did not mean 30 kilometers from here. Well, that's a distance from Banjim to Vasco. And within Vasco lies Baina. Baina, which was notoriously famous for all the sex work, all the illegal activities, and you name them, all the social issues. It was there in the late 90s and early 2000s. तो हम ना, well, because the scars are still remain. तो आज हम ना भीमावा चलवड़ी से मिलेंगे. Well, who is she? She didn't only fought her own battles. She actually went and rescued a lot of girls after that, along with, well, working with Goa's one of the most influential NGOs, where along with other people they rescued a lot of women who got trafficked and doing all the sex work, lots of things. So yeah, it must be really really fun. बहुत मज़ा आएगा उनके साथ, हम सारी चीज़ें करेंगे. Again यार, it's very sensitive topic, and when what she said to us that we can't, there are some restriction which we need to follow. We can't show her face. So, and the second thing was what? Second thing was we can't show her house. And third thing was what? Again यार, मैं बहुत चीज़ें भूलता हूँ, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. बट या मैं उनकी फैमिली को भी इन्वॉल्व नहीं कर सकता इसमें. तो हम जा रहे हैं उनके साथ, वो क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, सारी चीज़ें जानेंगे. उनके साथ साथ हम बाकी जहाँ हम जाने वाले हैं ना, उन सबसे मिलेंगे. और या it is going to be really really good, right, for sure. Where we met last time, right? Okay, fair enough. So it will be okay, right, if camera will be open, because I need to shoot my stairs walk-in stuff. So it will be okay, fine. Well, this is not a brothel system. This is a cubicle system which was there, which is of a rigid routine, small room, supervisor, fixed rate, and automatic deduction structured daily life. We had a conversation. Yeah. So here, what I want, here will be me, Bhimawa. Yes. So का नाम, मेरा आधार कार्ड पे मेरा बाप का नाम है. अब पति कहाँ से लाऊं मैं? पति का नाम नहीं है तो बाप का नाम है. पैसा कमाएंगे और उनको देखेगी, सेवा करेगी. कल को वो लोग मतलब उम्र हो गया तो उनको देखने वाला कोई नहीं, बेटा नहीं है तो बेटी देखेगी, कमा के वो देखेगी. तो ऐसा बोलते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो बायना में होता था कि पैसे के लिए, उनके पास बेटा रह के भी दो बेटी. Today, sex work no longer depends on fixed location. Research on digital exploitation indicates that the majority of transactions now begin through mobile phones and online platforms. Contact number replace streets, lodges and rented room replace visible spaces. Middlemen operate digitally, making regulation difficult. Invisibility increases isolation without public concentration. Exploitation becomes easier after the Baina demolition. 2003 में आप रेस्क्यू हुए थे ना? 2003 में मैं अर्थ भी ज्वाइन किया था. 2001 में मेरा रेस्क्यू हुआ. 17 साल की उम्र. तो आपको भेजा किस उम्र में था उस जगह? शायद 14 रहेगा, 14 साल. 3 साल. आप बहुत छोटी उम्र के थे उस वक्त. उतना पक्का मालूम नहीं क्योंकि अनपढ़ है, मेरे को बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, कुछ नहीं. अब मुझे पता नहीं कितना साल था मुझे, लेकिन शायद 14-15 रहेगा. उस वक्त का बायना और अभी का बायना अभी सब नहीं है, कुछ भी नहीं है. लेकिन अब तो हाँ, जैसे उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन छोड़ दिया. ब्रॉथल सिस्टम पहले एक्टिव था, अब अभी पे ब्रॉथल नहीं है यहाँ पे. ब्रॉथल सिस्टम नहीं है. नहीं है.
बहुत ही अलग तरीके से हर चीज़ का प्रोग्रेशन हुआ है ना। पुणे में मैंने जितना सुना है कि बहुत बड़ा एक एक पूरा तबका है जो वैसे sex work कर सेम रहा था, होता है। वैसे ही आप पुणे सेम में था थे? बायना में। हाँ, पुणे में 1 महीना थी मैं, तो फिर से वहाँ से भाग के आ गई मैं। पुणे में कैसा रहता था? पुणे में मतलब यहाँ पे छोटे छोटे रूम है, वहाँ पे बिल्डिंग्स है, मतलब बिल्डिंग्स में है। पुराने बिल्डिंग्स। हाँ, पुराना बिल्डिंग्स है। अरे इसे चाय बहुत पसंद है, ये पिएगा। सॉरी। आप बताओ मेरे को अपने बारे में, बनने दो। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, यहाँ पे ज़्यादा करके क्या होता है कि उनके साथ में कोई तो कोई मतलब पार्टनर रहता है, लड़की लोग के साथ में पार्टनर रहता है। हाँ। तो जैसे कि क्या बोलते हैं, बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड के जैसा पार्टनर रहता है, तो उनके साथ में जब बच्चा होता है फिर उसके बाद में वो उसका नाम देते हैं। नहीं, मैं वो नहीं मैं कह रहा हूँ, मान लो कि वैसा मैंने कोई सुना नहीं बाबा। सेक्स वर्कर है और वो सडनली वो प्रेग्नेंट है, कोई क्लाइंट था इसकी क्लाइंट वजह का से ऐसा मैंने नहीं सुना अभी तक, तो मैंने कभी नहीं सुना यहाँ पर। क्योंकि उन बच्चों का एडमिशन कराना, हर चीज़ कराने में प्रॉब्लम है, क्योंकि पापा कौन है पता ही नहीं है। वो वैसा वो हुआ है, लेकिन नाम के वजह से जब नाम डालना पड़ता है किसी बच्चे का नाम, सर्टिफिकेट अभी जो बना रहे हैं उनके मतलब सर्टिफिकेट है, उनके नाम डाल देते हैं, पार्टनर का नाम। और बिना पार्टनर का तो बच्चे का नाम नहीं है, कुछ नहीं। स्कूल में भी प्रॉब्लम होता है, सब जगह पे प्रॉब्लम होता है। आपने फेस किया है ना? देखा, मैंने सुना है बहुत लड़के लोग का है, तो भी किसी और का नाम डालते हैं, जैसे कि मामा, चाचा, पापा, उनका ही नाम डाल देते हैं। फिर जब एडमिशन हो जाता है स्कूल में जाने के बाद में, ये कौन है बोला तो मेरा बाप है, जैसे मेरा बाप का नाम, मेरा आधार कार्ड पे मेरा बाप का नाम है। अब पति कहाँ से लाऊं मैं, पति का नाम नहीं है तो बाप का नाम है, तो मेरा बेटे का इसमें उसका बाप का नाम है, तो उसमें मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था। स्कूल में बोल रहा है इसमें बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ अलग नाम है और तेरा आधार कार्ड पे अलग नाम है, और कैसा होगा। हो गया यहाँ का शूट, मैंने ख़त्म कर लिया। आई होप यू टुक ना वहाँ पे शायद- बैठते थोड़ी देर में चलते फिर। आई थिंक अब 2 जगह बचा है। विल गो टू बायना। बायना चलोगे ना? हाँ, वहाँ पे हम लोग उस सीन को देखेंगे, उसमें ऑफकोर्स उनकी फेस नहीं आएंगे। उसके बाद विल गो टू बायना बीच, दैट्स स्पॉट। सॉरी, बट और स्पेसिफिकली सिंस ये जो टॉपिक है ये अच्छे से पब्लिक के सामने नहीं बात कर सकते, तो विल लुक एट सम प्लेसेस जो शांति से सिर्फ 2 लोग बात कर सकें। मैं एंड में आप दोनों का बैडमिंटन मैच कराऊँगा। हाँ, ये मुझे पता है, लाइक 5 पॉइंट्स का मैच कराऊँगा, क्योंकि आई वॉन्ट टू पुट एग्जैक्टली इन दिस पर्टिकुलर। पता है मैं चाय नहीं पीता हूँ, इसकी वजह से पी रहा हूँ। मैं ले लेता हूँ। बीमार पड़ने लगी तो वो गुजर गई, और वो सड़क पे सोने लगी। एड्स कितना कॉमन है? एड्स तो है, उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन है। कोई डेटा इसके लिए भी है क्या? कितने लोग फंस जाते हैं एड्स वगैरह में, HIV? इसका डेटा तो वो NGO के पास होगा, हम लोग उतना एड्स का नहीं देखते हैं। आज ओनली प्रोवाइडिंग सर्विस टू विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। मतलब अब उनके साथ में अभी इतना अत्याचार होता है कि वहाँ से निकलने को मुश्किल हो जाता है उनका साथ। वो निकलेगा तो भी फिर वो उनका याद आते रहता है उनको। कोई अब स्टार्टिंग में लॉन्ड्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग बहुत बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे कि पार्लर हो गया और आइसक्रीम पार्लर हुआ। मतलब हर्ष के साथ या फिर किसी हर्ष के साथ ही है। जब डिमोलेशन हुआ ना उस टाइम पे लड़की लोग बोला कि हम लोग को मतलब काम चाहिए, तो काम नहीं है तो हम लोग कैसे क्या करेंगे। तो उस टाइम पे हम लोग काम ढूंढ रहे थे। उस टाइम पे उनको पेट्रोल पंप पे रखते थे, और घर पे जो मेड का काम करने के लिए रखा था, वहाँ पे लोग पहचानने लगे, फिर उनके साथ में गलत करने लगे, तो वो लोग को निकलने का मुश्किल हो जाता है। वहाँ से निकलेंगे तो भी लोग परेशान करते हैं, तो उस वजह से। बहुत अच्छी बात है निकल के। मैंने बोला ना कि 2 ऐसे प्रोफेशन है, एक जो इंसान गैंगस्टर या गुंडा बन जाता है, और एक या फिर इस धंधे में आ जाता है, फिर उसको निकलना बहुत मुश्किल होता है। निकलेंगे तो भी लोग, समाज के लोग टॉर्चर करते रहते हैं, उनको बोलते रहते हैं ये धंधा वाली है, ये है, वो है। और भाड़े रूम का भी, जब डिमोलिशन हो गया रूम मिलने को कितना तकलीफ हुआ, कोई रूम देने को रेडी हाँ, नहीं। ये भी होता है ना, जो भी इस तरह के काम करते हैं और आसपास के लोग अगर जानते हैं करते हो तो रूम नहीं मिलता। वो भी प्रॉब्लम है, रूम भी नहीं मिलता उनको। आपके साथ हुई थी ऐसी प्रॉब्लम? हुआ है, मेरे साथ में हुआ है। अभी मेरा साथ में कोई भी नहीं। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, यहाँ पे ज़्यादा करके क्या होता है कि उनके साथ में कोई तो कोई मतलब पार्टनर रहता है लड़की लोग के साथ में।
पार्टनर रहता है हाँ। तो जैसे कि क्या बोलते हैं बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड के जैसा पार्टनर रहता है वो, तो उनके साथ में जब बच्चा होता है फिर उसके बाद में वो उसका नाम देते हैं। नहीं मैं वो नहीं कह, मैं कह रहा हूँ मान लो कि वैसा मैंने कोई सुना नहीं बाबा। सेक्स वर्कर है और वो सडनली वो प्रेग्नेंट है, कोई क्लाइंट था इसकी क्लाइंट वजह का से ऐसा मैंने नहीं सुना, अभी तक तो मैंने कभी नहीं सुना कि यहाँ पे। क्योंकि उन बच्चों का एडमिशन कराना हर चीज़ कराने में प्रॉब्लम है, क्योंकि पापा कौन है पता ही नहीं है। वो वैसा वो हुआ है, लेकिन नाम के वजह से जब नाम डालना पड़ता है किसी बच्चे का नाम, सर्टिफिकेट अभी जो बना रहे हैं उनके मतलब सर्टिफिकेट है, उनके नाम डाल देते हैं पार्टनर का नाम, और बिना पार्टनर का तो बच्चे का नाम नहीं है, कुछ नहीं। स्कूल में भी प्रॉब्लम होता है, सब जगह पे प्रॉब्लम होता है। आपने फेस किया है ना? हाँ, देखा मैंने, सुना है बहुत लड़के लोग का है, तो भी किसी और का नाम डालते हैं, जैसे कि मामा, चाचा, पापा, उनका ही नाम डाल देते हैं। फिर जब एडमिशन हो जाता है स्कूल में जाने के बाद में, ये कौन है बोला तो मेरा बाप है, जैसे मेरा बाप का नाम। तो भी लोग, समाज के लोग टॉर्चर करते रहते हैं, उनको बोलते रहते हैं ये धंधा वाली है, ये है, वो है। और भाड़ा रूम का भी जब डिमोलिशन हो गया, रूम मिलने को कितना तकलीफ हुआ, कोई रूम देने को रेडी हाँ नहीं। ये भी होता है ना, जो भी इस तरह के काम करते हैं और आसपास के लोग अगर जानते हैं करते हो तो रूम नहीं मिलता। वो भी प्रॉब्लम है, रूम भी नहीं मिलता उन्हें। आपके साथ हुई थी ऐसी प्रॉब्लम? हुआ है, मेरे साथ में हुआ है। अभी मेरा साथ में कोई भी नहीं, अब मेरा बेटा मेरे बहन में ही रहते, पति किधर है, तो सिंगल लोगों को हम घर नहीं देते, शादीशुदा लोग होते थे। मेरे को बताओ ना, मेरे को वो 3 साल में कैसे कैसे क्लाइंट्स आते थे, क्या होता था, शराब पी के आते थे? तो बहुत अलग अलग तरह के लोग आते थे, जैसे कि कोई मतलब शराबी रहता था, कोई अच्छा वाला भी रहता था। अच्छा वाला मतलब क्या? अच्छा वाला मतलब सिर्फ मतलब ऐसे ही आते थे, मतलब कुछ नहीं करते थे। मेरे साथ में ऐसा हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। दो तीन बार हुआ है कि कोई आया तो लड़का लोग, मतलब लेकिन मतलब कुछ भी नहीं किया, लेकिन सिर्फ बैठे, बात किए, अपना जो पैसा देने का था दे के गए। मतलब ऐसे लोग भी आए कि बहुत बुरे लोग रहते थे, अब मारपीट के लिए भी आते थे, गाली गलौज देते थे, पी के आते थे, इनके कुछ अपने जबरदस्ती करने के। इनके कुछ अपने अपने ये रहते हैं क्या कि मेरे को ये चाहिए, ये फेवर चाहिए, वो फेवर चाहिए? ऐसे तो बोलते हैं, तो वो अपने ऊपर है। कोई कोई मतलब गलत गलत शब्द यूज करते हैं, गलत गलत बोलते हैं, तो ऐसा भी है। तो अच्छा बोल के मतलब ऐसा नहीं बोल सकते। इसमें बहुत सारे शादीशुदा मर्द भी होते थे। मेरे ख्याल से तो शादीशुदा ही ज़्यादा थे, ऐसा लगता मुझे, ज़्यादा आते। उस वक्त पैसे का सिस्टम क्या होता था? जैसे कोई पैसे 200 रुपये, 500 रुपये ऐसे चलता था, क्या था? कोई पैसे नहीं देता था? कोई ऐसा इंसिडेंट है जो कोई बहुत ही ख़राब रहा हो कि ये बहुत ही ख़राब कस्टमर है? मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारा लड़की लोग के साथ में हुआ है। बायना में? हाँ, तो लोग पैसा नहीं देते थे, गलत करते थे, जबरदस्ती कर उनको जलाते थे सिगरेट से। लड़की लोग ऑफिस इधर था हमारा पहला, यहाँ पीछे। पे? हाँ, इधर पीछे। ये वाला जो है ये ये रेड लाइट एरिया पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक रेड लाइट एरिया, जो टॉयलेट है ना, टॉयलेट तक, हाँ। टॉयलेट तक रेड लाइट एरिया था। यह पूरा रेड लाइट एरिया, ये सभी ये पूरा? पूरा, ये सब पूरा रेड लाइट एरिया था। यहाँ पे ये इतना रोड नहीं था, छोटा सा रोड था, ये इतना ही रोड था, वो वाला रोड नहीं था, वो वाला नहीं था, वो वाला खुला जगह था। यहाँ पे पूरा घर था, पूरा लड़की लोग भरा रहता था, जैसे पिक्चर में दिखाते ना, बार, डिस्को विस्को, इस तरह का पूरा चलता। ये वाला मरीना बार करके, ये इतना बड़ा बार था पूरा बाहर में, इसमें पूरा डेली डांस, गाना, बड़ा बड़ा म्यूज़िक, पूरा वो इसमें होता। आप यहाँ पे आना पसंद करते हो? नहीं ना? अभी तो कुछ नहीं, अभी आना पसंद करती हूँ। अभी क्या है, तब भी मतलब हम लोग को, जब मैं आई थी फर्स्ट मेरा मामा गुजरा था, तो हुबली में थे ना हम लोग, हुबली से इधर आए तो मेरा मामा गुजरा करके हम लोग आए थे। तो वो जगह है ना, तो इसका एलगुरी का घर, वहाँ से इस तरफ आने नहीं देते थे हम लोग को। जब मेरे को मुँह बांधने से पहले वहाँ से यहाँ पे आने नहीं देते थे, पूरा भरा रहता था, पूरा दुकान, लोग, ये टाइम पे जगह खाली नहीं रहता था, लोग भरा रहता था। तो ये रोड नहीं होता था? नहीं, रोड नहीं है, ये सब मतलब रिलेटेड है। ये अभी हुआ, ये रोड नहीं था, ये सब मट्टी का जगह था। तो यहाँ पे लड़की लोग, यहाँ पे लड़की लोग, पूरा लड़की लोग भरा रहता था, छोटे छोटे। होते थे यहाँ पे? कोई नहीं जाएगा उसमें। हम लोग जब लॉन्ड्री स्टाफ बोलते कि पैसे के लिए करते, तो पैसा तो सब उन दूसरे लोग को जाता है, इनको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। जब हम लोग लॉन्ड्री स्टार्ट किया था, 1500 में लड़की लोग काम करते थे। यहाँ पे बोलते कि इतना इतना कमाते हैं, पैसे का लालच से हम लोग निकल नहीं पाते, लेकिन 1500 में निकले ना लड़की लोग, निकले वो लोग अपना पैर पे अपना
बच्चों लोग को संभाल रहे थे, मतलब पढ़ा मैंने रहे एक थे। चीज़ कहीं सुना था कि ऐसी एक फैमिली थी जिसमें एक फाइनेंशियल दिक्कत थी, लोन का दिक्कत था, और उसने एक सेक्स वर्कर के लोन चुका दिया। अब उसे छूटा नहीं जा रहा वो काम, क्योंकि वो उनको अच्छा लग रहा है वो काम करना। अच्छा किसी को नहीं लगता, उसका मजबूरी रहेगा उधर निकलने का, उसके बाद क्या काम करो। अब मैं जब निकलने का टाइम पे मैं वही सोच रही थी, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं, मेरे को कुछ काम आता नहीं, मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली, अब मैं जाऊँगी तो क्या काम करूँगी, मैं तो सोच रही थी। जब मैं निकली वहाँ से मेरे को किसी ने बोला कि ये काम मिलेगा, ये करेगी, मौका दिया तो मैंने उसका फ़ायदा उठाया। तो मौका का फ़ायदा उठा के मैंने दूसरे का भी हेल्प किया। मैंने सोचा कि मैं अपना खुद का नहीं दूसरे का भी करूँगी, दूसरा लोग भी निकलेगा, उन लोग को भी कुछ होगा, तो ऐसा कोई हेल्प मिलेगा तो निकलेंगे ही। अब इतना लड़की लोग निकला, आदत हुआ, कितना सालों से वो लोग धंधे कर रहे थे, उनके पास टाइम मतलब मिलता, ये सब कुछ दारू पीते थे, ये करते थे, लेकिन वो लोग वहाँ से निकलने का मतलब लॉन्ड्री में काम किया, अपना बच्चों को पढ़ाई किया, अपना खुद का ये किया। जो कहता था बार बार धंधा धंधा धंधा, इस तरह के और भी शब्द थे क्या जो उस टाइम पे यूज़ होते थे, ऐसे कोई भी शब्द 4-5? जिसम बेचना धंधा वही बोलते थे, और क्या बोलते थे। अच्छा, यहाँ पे कोड वर्ड काइंड ऑफ थिंग नहीं होता। मेरे को तो पता नहीं। थैंक यू सो मच। हमारा इंटरव्यू हो गया और आप Today leaving feels more riskier than staying. This is the case right now. Can any sex worker now leave the job? But today leaving feels riskier than staying. Dispersed system reduce access to support organization. While online network make re-entry easier and exit lonelier, research on survivor pathways shows that without stable jobs, housing and social acceptance, uncertainty becomes overwhelming. Staying becomes a survival strategy rather than a choice. The system survives because it adapts faster than solution do. Thriving is invisibility while exist, remain unsupported and incomplete.